میں قابل نفرت نہ تھی، لیکن لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے، اور اب یقین ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کہنا پسند نہ کرتے، اس لیے کہ تقدیر نے وطن چھینا اور پھر ایک بے غیرت مرد جسے عرف عام میں دلال کہتے ہیں، مجھے معصوم لڑکی سے طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ میری کہانی سیدھی سادی ہے، مگر زندگی اور وقت کے داؤ پیچ اتنے سیدھے نہیں ہیں، بس ذرا سا پیر پھسلنے کی دیر ہے۔ نادان عورت تو سیدھی حقارتوں کی دلدل میں جا گرتی ہے۔ حالات کے ہاتھوں یہ تباہ حال عورت پھر چاہے جتنا پکار پکار کر کہے مجھے نکالو اس دلدل سے، لوگ اسے طوائف ہی سمجھتے ہیں اور ہاتھ بڑھانے سے ڈرتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ گناہ سے نفرت کرنے کے باوجود اس بازار کی زینت بنوں گی جہاں عصمت کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ میں بنگلہ دیش کھنہ کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ جب ہوش سنبھالا والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں ان میں سب سے بڑی تھی۔ غربت کی وجہ سے جب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیری، دوسری شادی کرنے کی بجائے ماں نے دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے کو ترجیح دی۔ ان حالات میں بڑی مشکل سے میں نے میٹرک کیا۔ ماں انتھک محنت سے جلد ہی بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے میٹرک اس لیے کیا تھا کہ کہیں نوکری کر سکوں، اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کا سہارا بن سکوں۔ اب میں نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکنے لگی۔ کئی لوگ عزت کے بدلے نوکری کی پیشکش کرتے تو کہیں رشوت اور سفارش طلب کرتے۔ اب پتہ چلا کہ ملازمت تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ وہی لڑکیاں جانتی ہیں جو ان حالات سے گزرتی ہیں۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں ایک گھرانہ آباد تھا جو میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ گھرانے کے سربراہ کا نام صابر تھا۔ ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی اور ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے، ایک روز صابر ہمارے گھر آیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ماں نے اسے اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو نوکری دلوا دو۔ صابر نے ماں کو تسلی دی اور کہا، اگر تم مجھ پہ اعتبار کرو تو میں تمہاری لڑکی کو دبئی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں، بہت اچھی تنخواہ ملے گی، میں خود بھی وہاں جا رہا ہوں، بیوی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں، تمہاری بیٹی فریحہ وہاں میرے گھر پر رہے گی، میں ہر ہفتہ تمہاری سے فون پر بات کروا دیا کروں گا۔ غربت سے مجبور ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور حامی بھر لی۔ صابر کچھ دنوں کے لیے بنگلہ دیش میں ہی رہا اور پھر گھر آیا تو ماں کو خوشخبری سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ میرا بھی ویزا لے آیا ہے، پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ ماں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر اسے دے دی اور تمام مراحل مکمل ہو گئے۔ بالآخر روانگی کا وقت آ گیا۔ میں صابر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوائی جہاز پر بیٹھ گئی اور ہم دبئی آ گئے، جہاں چند دن اس نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا اور پھر مجھے ایسی جگہ لے آیا جہاں مجھ سے اور بھی بہت سی بد نصیب لڑکیاں تھیں۔ ان سے ملی تو پتہ چلا کہ صابر نے جھوٹ بولا تھا اور یہاں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ بازار حسن کا دلال تھا جو بظاہر جعلی نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا کر لایا تھا، لیکن اس کا کام عورتوں کو خرید کر بازار حسن کی زینت بنانا تھا۔ میں جس عزت کی حفاظت میں اتنی دور آئی تھی یہاں اس کا نیلام ہونے لگا۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میں موت کی دعا کرتی لیکن موت بھی نہیں آتی تھی۔ میں ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی تھی، گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ خدا کسی شریف انسان کو میرے پاس بھیج دے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ بالآخر خدا کو مجھ پر ترس آ گیا اور ایک روز ایک شخص آیا جو شکل سے شریف اور اطوار سے با اخلاق لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، کیا تو مجبور ہے یا خوشی سے ان کانٹوں بھری سیج پر بیٹھی ہو؟ میں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ سال بھر سے جیسے کہ میں بس اسی سوال کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں لگ گئی۔
जैसे सावन भादों का महीना अपनी पूरी आबोताब से बरसता है। जब रो रो कर दिल का गुबार निकाल चुकी तो उसने कहा, सच कहा था मेरे दोस्तों ने, मैं सही लड़की के पास पहुंचा हूँ। क्या कहा था आपके दोस्तों ने और कौन है वो? मैंने डूबी हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया तो फ़हीम ने बताया कि मैं इस बाज़ार का शौकीन नहीं हूँ और ना ही मेरा ये तरीका है। हाँ, मेरे चंद दोस्त ऐसे हैं जो इस जगह सुकून तलाश करने आते हैं। एक रोज़ वो मेरे घर पर बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रहा था। असलम ने कहा, यार तबीयत बोझल है, उधर जाना चाहिए। दूसरा बोला, इस बार मुशीद से कहना फिर इसी लड़की से ना मिलवा दे जिसका नाम हमने रोती सूरत रखा है, हर वक्त रोती रहती है। अरे हाँ यार, वो फरीहा, वो तो नफ्सियाती मरीज़ है, खूबसूरत तो बेहद है, लेकिन अभी तक उसने माहौल को कबूल नहीं किया। कोई दिल बहलाने जाता है और ये रो रो कर गमों को दुगना कर देती है, दिल खराब हो जाता है। आफ्ताब ने भी यही कहा। हामिद ने कहा, यार तरस आता है उस कमबख्त पर। एक दलाल उसे धोखे से यहाँ लाया है, नौकरी का झांसा दे दिया था। वो बेचारी शरीफ लड़की है, जब भी रोती है। मैंने जब दोस्तों से ऐसी बातें सुनी तो तुम्हारा अता पता दरियाफ्त किया और यहाँ तक आ गया। जब पहली नज़र तुम पर पड़ी तो तुम्हारी अच्छी सूरत से मुतासिर हुआ, मगर तुमसे बात करते मालूम हुआ कि तुम्हें तवाइफ ज़रूर बना दिया गया है, मगर तुम्हारे इस जिस्म के अंदर एक शरीफ औरत अभी तक जिंदा है। अच्छा बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और कौन लाया था तुमको यहाँ? मैंने अपनी सारी स्टोरी फ़हीम को सुना दी। मेरी कहानी सुनकर उसके दिल में रहम जाग गया। उसने कहा, फरिया, अगर तुम वाकया सच्ची हो और इस गंदगी से छुटकारा पाना चाहती हो तो यहाँ से इसी वक्त निकल चलो, मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं। सारी स्टोरी फ़हीम को सुना दी। मेरी कहानी सुनकर उसके दिल में रहम जाग गया। उसने कहा, फरिया, अगर तुम वाकया सच्ची हो और इस गंदगी से छुटकारा पाना चाहती हो तो यहाँ से इसी वक्त निकल चलो, मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मैं राज़ी हो गई और फिर रात के 12 बजे वो मुझे वहाँ से किसी तरह निकाल कर अपने फ्लैट में लाया। सुबह हमने निकाह किया और मियाँ बीवी जैसे मुकद्दस बंधन में बंध गए। चंद दिन बाद फ़हीम ने अपने घर वालों से राब्ता किया और उनको खुशखबरी दी कि उसने शादी कर ली है। वो इस फेल पर उनसे इसलिए माफ़ी तलबगार था कि अपनों से इजाज़त ना ली थी और ना ही अपनी शादी में उनको शामिल किया था। बहरहाल अपने तो अपने होते हैं। उन्होंने फ़हीम को माफ़ कर दिया, बल्कि कहा, अपनी दुल्हन को साथ लेकर आओ, वो जैसी भी है हमें कबूल है। हमारी बहू बन गई है तो हमें कबूल करना ही है। इस उम्मीद ज़दा जवाब के मिलते ही फ़हीम खुश हो गया और मुझे लेकर अपने घर वालों के पास गया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि बहू बन गई है तो हमें कबूल है। फ़हीम के माँ बाप, बहन भाइयों ने मुझे कबूल कर लिया और वही इज्जत दी जैसे कि एक बहू को मिलनी चाहिए थी। अब मैं फ़हीम के घर वालों के साथ उनके घर में रहने लगी। फ़हीम और मैं बहुत खुश थे। हम अपनों में आ गए थे और अकेले जीवन की सख्तियां सहने से बच गए थे। शादी को 4 बरस बीत गए, लेकिन मैं औलाद की नेमत से अभी तक महरूम थी। सास लेडी डॉक्टर के पास ले गई। उसने बताया कि इनको औलाद ही नहीं हो सकती। औलाद ना होने पर भी फ़हीम मुझे बहुत चाहते थे। मैं उनसे कहती कि मेरी तरफ ना देखो और दूसरी शादी कर लो। औलाद तो ऐसी नेमत है, आप क्यों इस वजह से इस नेमत को तरसें। तब वो कहते थे, मैं तुम पर कभी भी सौतन ना लाऊंगा और कभी दूसरी शादी ना करूंगा। तुम्हारा क्या कसूर है, मैं तुम पर क्यों जुल्म तोड़ूं? क्या पहले कम दुख दिए हैं किस्मत ने तुम्हें? मैंने कहा, आपने एक बार कुर्बानी दी है, इस एहसान को मैं भूल नहीं सकती। अब दूसरी कुर्बानी ना दे। तो फ़हीम कहते थे, जब कुर्बानी दी है तो पूरी तरह दूंगा, वरना कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। वो मुझसे जितना प्यार करते थे, मैं भी दिलो जान से उन्हें चाहने लगी थी। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं भी अच्छी दिल की थी। अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी खूब मिलाई थी।
बहुत खुश व खरम जिंदगी गुजर रही थी कि एक बार फिर मेरी जिंदगी में कयामत की घड़ी आ गई। एक बार जबकि फ़हीम घर ना था, उनके एक दोस्त असलम अपनी बीवी के साथ हमारे घर आए। मैं अनजाने में उनके सामने चली गई। असलम ने मुझे देखते ही पहचान लिया। वो कई बार उस बाजार में आ चुका था। उसने अपनी बीवी को बताया कि फ़हीम की बीवी का ताल्लुक बाज़ार हुस्न से है। खुदा जाने फ़हीम की अकल को क्या हुआ था जो एक तवाइफ को बीवी बनाकर घर लाया है। उसे अपनी वालदा और बहनों का भी पास ना रहा कि ये औरत कैसे इनके दरमियान में रहेगी। असलम की बीवी ने मेरी सास की भांजी अलीज़ा को सारा किस्सा बता दिया। अलीज़ा से उसकी दोस्ती थी। उस्मा भी पेट की हल्की निकली और यूं बात होते होते पूरे ख़ानदान में फैल गई। मेरी सास और नंदों को तमाम किस्सा पता चला। उन्होंने हमसे पूछा। फ़हीम ने उन्हें बताया कि हालात ने फरीहा पर सितम किया था। इसका तो कोई कसूर नहीं है। मैं उसे गुनाहगार नहीं समझता, नेकी समझकर इसके साथ निकाह किया है। कोई कुछ भी कहे, मुझे हरगिज़ इसकी परवाह नहीं। हम अपने घर में खुश हैं, कोई हमसे नाता रखे या ना रखे। मेरी सास ने इतराज़ किया कि अगर तवाइफ को ही बीवी बना लाए थे तो पहले बताना था, हम तुमको यहाँ उसे लाने का कभी ना कहते। अब तुम लोग हमसे अलग हो जाओ और अलहदा रहो, क्योंकि मेरी बच्चियों की अभी शादियां नहीं हुई हैं। इनके रिश्ते होने हैं। जिस घर की बहू तवाइफ ज़ादी हो, उस घर की बच्चियों के रिश्ते कौन लाएगा? मेरी बेटियां तो बिन ब्याहे ही रह जाएंगी। कौन से शरीफ घराने मेरी लड़कियों के रिश्ते लाएंगे? जब मैंने सास के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। वो कह रही थी, मैं तो सास हूँ, अगर फरीहा के वालिदैन भी उसके हालात जान ले तो उसे बेटी कहकर बुलाना पसंद ना करेंगे। और ये ऐसी बातें मेरे लिए रूह जख्मी करने वाली थी। तभी मजबूर होकर फ़हीम ने किराए का मकान तलाश किया और हम अलहदा हो गए। मैं अब अपने शौहर के वालिदैन के घर नहीं जाती। उनके बहन भाई और रिश्तेदार भी मुझसे नहीं मिलते। इत्तेफाकन मिल जाएं तो कतरा कर निकल जाते हैं। तब बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूँ, अगर तवाइफ होना काबिल नफ़रत है तो फिर इस माशरे के कुछ अफराद भी काबिल नफ़रत हैं। सिर्फ तवाइफ से ही नफ़रत क्यों? उन लोगों से भी नफ़रत की जानी चाहिए जो औरत को तवाइफ बनाते हैं, उसे खरीदने और बेचने का काम करते हैं। वो लोग तो शुरफा की सोसाइटी में ऐसे घुल मिल कर रहते हैं कि पहचाने नहीं जाते, मगर औरत ही काबिल नफ़रत ठहरती है। वही गुनाहगार समझी जाती है, वही सजावार होती है। आखिर ये बेइंसाफ़ी क्यों? अफसोस तो ये है कि जिस शख्स ने मुझे दलदल से निकाला, मुझे शरीफाना ज़िंदगी दी, नेकी और सवाब का काम किया, उसे भी लोग मेरे साथ सज़ा देने लगे। फ़हीम को भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते कि इसने फरीहा से क्यों शादी की है। क्या दुनिया में शरीफ लड़कियों की कमी थी जो ये गंदगी में जा गिरा? और मैं कहती हूँ कि शरीफ घराने की अच्छी लड़कियों को तो सभी अपनाते हैं। आफरीन तो इस शख्स पर है जो गुनाह की दलदल में फंसी किसी ऐसी औरत को उस दलदल से निकालता है जो दिल से शरीफाना ज़िंदगी की आरज़ूमंद होती है। अगर वाकई कोई औरत ऐसी हो और वो शरीफाना ज़िंदगी की आरज़ूमंद हो तो उसको शरीफाना ज़िंदगी देना और गुनाह की दलदल से निकाल लेना एक बड़ी नेकी है। माशरा चाहे हमसे जितनी भी नफ़रत करे, मगर मैं तो यही कहूँगी ना कि फ़हीम ने मुझे अपना कर जो नेकी की है, इसका उसे बड़ा अजर मिलेगा। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।